Hello everyone, greetings for the day. As you can see behind me, that today's lecture is completely based on cell biology, जिसको हम कोशिका विज्ञान के रूप में भी जानते हैं. Cell biology basically is a very important part if we are talking about competitive analysis. Or competitive exams like NDA, CDA, FCAT covers an important factual description about cell biology. As you have already know that from class 6 to 12 we have studied about this, like जिनके पास biology class 10 तक थी उन्होंने भी basically इस part को cover किया होगा, because cell biology is the basic fundamental unit of life. Basic fundamental unit of life, or we can say that it is a basic fundamental and structural unit of life. Fundamental word से आप समझते हैं that is a fundamental, does not depend on any other thing. And structural मतलब it is also basically इसी सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर ही हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर्स भी आधार करते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं. सेल बायोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले सेल के बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे 1665 में, हिज नेम वाज रॉबर्ट हुक. Cell was discovered in 1665 by Robert Hooke. We will give you some description about and facts about all the inventions or discoveries that was held in past. But competition है तो there is some kind of कुछ चीजें इसमें ऐसी रहती हैं जो बेसिकली आपको थोड़ा बाकी स्टूडेंट से डिफरेंस अपने आप में क्रिएट करने के लिए हेल्प करती हैं. जैसे कि 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा जो बेसिक सेल अपने आप में डिस्कवर किया गया था, दैट वाज अ डेड सेल. एंड आई गेस 70% of student does not know about this thing that Robert Hooke discovered dead cell, because उनकी जो डिस्कवरी रही थी that was on cork. एक कॉर्क की स्लाइस थी. कॉर्क जो बच्चे नहीं समझते, दैट इज अ बॉटल के ओपनर्स होते हैं, वुड के बने हुए होते हैं. तो बेसिकली उसी में उनकी डिस्कवरी अपने आप में की गई थी, और इस वजह से उन्होंने बताया था कि दैट सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ये डेफिनेशन और ये जो स्टेटमेंट है दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक ओनली. एज यू कैन सी बिहाइंड मी, बिकॉज ये जो कंटेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो फैक्ट से भरा हुआ है कि हम सेल, अगर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के ऊपर हम सेल बायोलॉजी को पढ़े तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वी हैव टू लर्न अबाउट सेल्स. क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपको बता दूं, बिकॉज when you study about the cell biology you also get the knowledge about evolution of life and also diversity in living organism, जिसको हिंदी में अगर मैं बात करूं जीवों का वर्गीकरण भी कहा जाता है. कोशिका विज्ञान, cell biology is the basic fundamental unit of life. And now we are going to start with the important facts and important terminology that is important in cell biology. Let's come. सबसे पहले सेल की डेफिनेशन, as you already know, this is the basic functional unit of all living things. All living things में you include plant, animals, right? Bacteria, fungi, there are a lot of more things, है ना? इस चैप्टर में जब हम आगे जाएंगे, बिकॉज सेल बायोलॉजी covers diversity in living organism, like you have already studied in your school maybe, five kingdom of classification, पांच जीवों का वर्गीकरण. मैं why I am putting all these things right now over here to just आपकी जो curiosity है इस चीज को जानने के लिए, that is very important. Five kingdom of classification was given by, अच्छा देखिए competition में very important part, interrelatable content is very important. If you are basically focusing on only one part, that is not enough. Interrelatable content is very important. Interrelatable content मेरा कहने से मतलब क्या है? Like if we are studying about the cell biology, we also have to study about cell biology का impact biology में और कहाँ होता है. Because it is the first part. If I am saying you about competitive exams, it is the first part, it is the first step. बेसिक अपने आप में आप बायोलॉजी में रखते हो, who studied about cell biology. तो मैंने जैसे कहा first five kingdom of classification. In the five kingdom of classifications are what? Monera, Protista, right? Protista, fungi, animal, and plant. These are the five kingdom of classification. It was given by R.H. Whittaker.
His name was very important because in 2023 ND examination, this was the only question was given to you. Not the only, but this was the question given to you. Like कि भाई अपने आप में 5 kingdom of classification किसके द्वारा दिया गया? तो 5 kingdom of classification was given by R.H. Whittaker. And as I have already told you, interrelatable content is very important, students. Interrelatable मेरा कहने का मतलब है not only 5 kingdom of classification is important. They're gonna ask you who gave the 2 kingdom of classification for the first time, who give you 3 kingdom of classification, who give you 4 kingdom of classification, who give you 5 kingdom of classification. You already know about this thing, right? So that is why this class is very important, because we are going to talk about some very important facts and some very important terminologies that is important in while studying cell biology. Let's start with the basic fundamentals first. So we already know the definition. तो सेल की क्यूरियोसिटी जगाने के लिए मैंने आपको इंटर रिलेटेबल कंटेंट्स बताए जो बेसिक आपका सेल बायोलॉजी को समझने के बाद ही यू कैन अपने आप में उन पे टारगेट कर सकते हैं, राइट? सो सेल, it is a basic fundamental unit of life, right? I can add it is a basic fundamental and structural unit of life. यहां से आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, it is basic fundamental and structural unit of life. मैं स्ट्रक्चरल क्यों कह रहा हूं बच्चे? देखिए डेफिनेशन जब आप पढ़ रहे हैं तो क्यूरियोसिटी के साथ थोड़ा सा जिज्ञासा के साथ पढ़िए, क्योंकि उस डेफिनेशन पे काफी सारी चीजें आपकी ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है. फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल कि ये किसी पे निर्भर नहीं करती, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. जो इस पे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद है. क्या बोला मैंने? सेल ऑर्गेनल्स, राइट? अब जब आपने बोला फंडामेंटल कि भैया इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक यूनिट. बेसिक यूनिट कहने का मतलब है अगर जैसे हम हम घर बनाते हैं तो उसमें जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो ब्रिक होती है. ईंट को जोड़ के बेसिकली क्या बनता है? मकान बनता है. वैसी एक सेल्स को जोड़ के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हम अपने आप में फॉर्म करते हैं. थोड़ा आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि अपने आप में ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज योर कंप्लीट बॉडी. So this is how you basically understand the basic fundamental that how living organism basically evolved. उनकी functional unit क्या है, उनका structure इस तरीके का क्यों है, why human beings have this kind of a structure, why dog have this kind of a structure, right? और important बात करूंगा plants भी तो living organism में आते हैं, why they cannot move. So these all doubts and these all curiosity of yours can be easily solved by if you can if you can study all these things very properly. So if you want to study all these things very properly, आपका थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे मैं खींचना चाहूंगा. So हमने बोला था this is a basic fundamental unit of life, and यहाँ से मैंने ऐड क्या करा है? basic fundamental and structural unit of life. Very important. अगर आप किसी को आगे जाके स्वामी विवेकानंद की मुझे थ्योरी याद आती है तो ऐसा पढ़े कि पढ़ा सके. If you are going to study like this, that you can teach it also. That is आप वहां पर अपना क्या कर रहे हैं? एक बेंचमार्क क्रिएट कर रहे हैं. So you have to create benchmark while studying, right? So it is a basic functional structure, basic fundamental functional and structural unit of life. याद रखिएगा. Next, this is comprised of many important organelles. जैसे मैंने आपको बताया कि सेल बायोलॉजी में अगर क्वेश्चन पुट अप होगा तो कहां से होगा? बिकॉज़ हम पे तो एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं. वी डोंट हैव टू राइट डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग डेफिनेशन, बट assertion और reason के क्वेश्चंस भी इसमें बहुत सारे आते हैं. After this lecture, I am also going to include some part of question that is in your previous year examination, and that is very important. Assertion और reason वाले questions ND और CDS, FCAT जैसे examinations में बहुत बार देखे गए हैं. ठीक है? This is compromised of many important organelles or structure that have different functions. Yes, obviously. सेल के ऑर्गन्स जो अपने आप में, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, राइट? हमारी बॉडी में ऑर्गन जैसे बेसिकली कौन कौन से? हार्ट है, किडनी है, राइट, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस. तो ये ईच एंड एवरी ऑर्गन है जो ये बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस अपने आप में कर रहा है, वो अपने आप में किस वजह से कर रहा है? बिकॉज उसका जो फंडामेंटल यूनिट है, जो उसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो इस तरीके से डेवलप की गई है या वो इस तरीके से इवॉल्व हुई है कि उसको उसी तरीके का काम करना है. ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ह्यूमंस को समझना है तो सबसे पहले सेल को समझना अपने आप में बहुत अनिवार्य हो जाता है. केवल ह्यूमंस को समझने के लिए नहीं, all the living organism, all the that includes plants, animal, fungi, bacteria. To study about all these organisms, you have to study just only one thing, that is cell. If you have a strong command
like about all the cell organisms that you can give the पूरा structural unit आप बता सकते हैं about all the living organism, not the only structural unit, about also functional unit. तो थोड़ा सा मैं स्लो डाउन करूंगा क्योंकि थोड़ा क्यूरियोसिटी आपका स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में मुझे जगाना था that why this part is very important, because this part is actually very important because in every NDA CDS competitive examination you are going to see the question from cell biology, diversity in living organism. This is a very important part. Okay, let's come. जब सबसे पहले, अब आइए हम जरा थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के बेसिस पे बात करते हैं. एरिस्टोटल, बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, अरस्तु जिसको हिंदी में कहते हैं एरिस्टोटल. मैं इनका नाम यहां पे क्यों ले रहा हूं? एरिस्टोटल नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी बेसिकली, राइट. इनका नाम इसलिए लिया जाता है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली गिव अस लाइक द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने वर्गीकरण के बारे में, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसके बारे में बात करें. कुछ मोटे तथ्य तो नहीं दे पाए, लेकिन बहुत पुराने व्यक्ति हैं, बहुत फादर ऑफ बायोलॉजी के. इन्होंने सबसे पहले हमारे मनों में एक क्यूरियोसिटी जगाई थी कि बेसिकली बायोलॉजी भी एक सेक्शन है साइंस का जिसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, राइट. और एरिस्टोटल ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन में, ये नहीं कहूंगा कि क्लासिफिकेशन के बारे में पहले बताया, बट he gave us the curiosity कि organisms can be classified in different types because they possess different kind of cells. ठीक है, कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है, इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना. एज यू ऑलरेडी नो दैट अगर मैं बात करूं कि भाई सबसे पहला जीवन अपने आप में कहां पर आया, तो जीवन तो वहीं पे आएगा, लाइफ वहीं पे एग्जिस्ट करेगी जहां पे बेसिकली सेल डेवलप होगा. तो एक्वेटिक animals was the first aquatic living organism was the first living organism जो basically सबसे पहले अपने आप में पृथ्वी पर आए. अगर आप इवोल्यूशन की थ्योरी देखें, बिग बैंग थ्योरी भी देखें या इवोल्यूशन की थ्योरी, अगर आपकी थोड़ी क्यूरियोसिटी है तो किताबें मैं आपको 2-3 सजेस्ट कर सकता हूं जो इवोल्यूशन के बारे में बताती है. तो द फर्स्ट इवोल्यूशन वाज takes place in aquatic being. तो the first cell that was developed at that time of period was a prokaryotic cell. अब आइए जरा मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूं, ठीक है. अब जरा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे क्यूरियोसिटी के साथ साथ आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा. सेल की अगर बात करूं बेटा जी, सेल इज डिवाइड्स अप इनटू 2 पार्ट्स. पहला प्रिमिटिव सेल एंड द सेकंड वन इज एडवांस सेल. अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक का वैसे मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन आगे जाके यूकैरियोटिक सेल आने वाला है. लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा तो यू विल बी आपके लिए इजी हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना, दैट व्हाई इट इज प्रिमिटिव, व्हाई इट इज एडवांस. सेल क्लासिफाइज अप इनटू 2 पार्ट्स या 2 टाइप्स, प्रिमिटिव एंड एडवांस सेल. प्रिमिटिव मतलब जो सबसे पहले लाइफ में आया, मतलब जो सबसे पहले एग्जिस्ट किया, वो बेसिकली प्रिमिटिव सेल था जिसको हमने नाम दिया प्रोकैरियोटिक सेल. क्या नाम दिया? प्रोकैरियोटिक सेल. और एडवांस सेल को नाम दिया यूकैरियोटिक सेल, जो आफ्टर. अब देखिएगा नाम में थोड़ा सा इसमें मजेदार है. प्रो मींस बिफोर, जो मतलब पहले आया, राइट. तो सबसे पहला सेल जो अपने आप में सेल बायोलॉजी में आया, दैट वाज प्रोकैरियोटिक सेल, दैट वाज प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मतलब कि इतना एडवांस नहीं था. अब फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो इवॉल्व अपनी एनवायरनमेंट को देख के होता है, राइट. यही प्रिमिटिव सेल बाद में जाके अपना एडवांस हुआ जब इसको लगा कि बेसिकली सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैव टू इंक्लूड इनसाइड माय बॉडी फॉर द सर्वाइवल. फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी लद्दाख में रहने लग जाऊं तो मेरी बॉडी लद्दाख लाइक तो बनी नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक यहाँ पर लैंड में जहाँ पे गर्मी और सर्दियां इतनी ज्यादा नहीं पड़ती. तो इवॉल्व इस तरीके से व्यक्ति होता है जिस तरीके से उसका अपने आप में सराउंडिंग्स मौजूद होती हैं. सिमिलरली प्रिमिटिव सेल्स जनरली क्या एडवांस हुए आफ्टर गेटिंग ऑल दोस थिंग्स, knowledge from the environment, that these things you have to include inside your cell so that you can survive further in life, right. और ये बेसिकली हुआ भी. प्रिमिटिव सेल ही फर्दर एडवांस होके यूकैरियोटिक सेल बना. उसने
काफी सारे सेल ऑर्गेनिल्स को अपने अंदर एड ऑन किया और एड ऑन करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म किए। जैसे कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस आते हैं, देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा जी, जब अगर आप बात करें कि सर आप बार बार इस टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में ही बात करूं तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वो कौन कौन से होते हैं? एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंपल, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी। और इससे भी पहले दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमें पाए जाते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच पोजेस ओनली सिंगल सेल। यस, जिसमें यूनि से मतलब क्या है? सिंगल। यूनि से मतलब क्या है? सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर व्हाट? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर दीस? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुकोशिकीय, लाइक जीव जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब दे पोजेस लाइक डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस। लाइक इन आवर बॉडी, लाइक अगर मैं बात करूं मेरी बॉडी में, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन सेल्स होते हैं, नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी सेल्स होते हैं। सो every cells possess different kind of functional and structural unit of life. So I am the complex multicellular organism. So to understand my body, you have to understand your body, you have to understand every other human being's body or every other living organism body, you have to first focus in living organism cells, right? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव सेल, जो सबसे पहले सेल अपने आप में धरती पर आया और जिसकी वजह से आगे उत्पत्ति इवोल्यूशन हुआ। और इंपॉर्टेंट क्या है कंपटीशन में कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स अपने आप में मौजूद हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आप मेरे सामने देख सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। क्या क्या चीजें इसमें मौजूद है? राइबोसोम्स। अब जो भी ये अंदर की चीजें आप पढ़ रहे हैं, these are cell organelles, these are what? Cell organelles। यूकेरियोटिक सेल में जो एडवांस सेल है, you are going to study more cell organelles and their functions, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइबोसोम्स की बात करूं, बेसिकली राइबोसोम्स, एक बार क्वेश्चन आया था 2024 में, अभी जो रिसेंटली 2024 गया, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री का कहने का मेरा मतलब है, प्रोटीन, अगर देखिए मैं जो भी चीजें खाता हूं, लाइक ये जो भी मेरा आहार है, फूड का जो कंपोनेंट होता है, फूड, मैं कहता हूं ना, मैं इंटररिलेटेबल कंटेंट के बारे में बात करना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि कंपटीशन में यू नेवर नो क्वेश्चन कहां से आ जाए। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ सिंगल फैक्ट, उसका इंटररिलेटेबल कंटेंट पढ़ते रहा करें और मेरी क्लास में आपको इस चीज को देखने का मौका मिले। फूड जो होता है बेटा, फूड 5 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आप सेल में ये सारी चीजें देखेंगे। जैसे कि मैंने राइबोसोम्स के बारे में बताया, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। आपने बोला जो ये अपने आप में प्रोटीन होता है, सर अभी तक हमने सुना था कि हमारी मांसपेशियां बनाने के काम आता है। दीज आर मसल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन, बिकॉज वो डाइजेस्ट होकर एमिनो एसिड्स बनते हैं, एमिनो एसिड्स मेरी मसल्स बनाने में काम करते हैं। तो इनका देखिए प्रोटीन फैक्ट्री कहने का ये मतलब नहीं कि इसके पास सारा प्रोटीन नहीं, ये बेसिकली प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के काम आता है, मतलब उसको डाइजेस्ट अपने आप में करने के काम आता है। तो देखिए खा मैं यहां से रहा हूं और बेसिकली डाइजेशन कहां हो रहा है? सेल में जा रहा है। डाइजेशन मेरे डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में भी होता है, बट वो प्रोटीन उठा के जो स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि लाइक लास्ट में डाइजेशन वहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो प्रोटीन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के पार्ट्स में ले जाता है। खाना तो यहाँ खाया, वो यहाँ कैसे लगा? बोलते हैं ना आपकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए उसमें, है ना? तो खाया तो मैंने यहाँ से था, यहाँ तक कैसे लगा? थ्रू ब्लड। ब्लड इज बेसिकली अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड ले गया यहाँ तक प्रोटीन को, सेल्स को दिया प्रोटीन। अब सेल्स के अंदर उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का, मतलब उसको अपने आप में तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ताकि वो आगे फर्दर आपकी बॉडी में मसल्स बिल्डिंग के लिए काम आए? तो बेसिकली कौन कर रहा है? राइबोसोम्स कर रहे हैं, जिनको प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए काम किया जाता है। इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स के तौर पे जाना जाता है। देखिए फूड, जैसे मैंने आपको बताया, फूड 5 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट? ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा अपने कुछ और लेक्चर में, जब अपने आप में बायोलॉजी के ऊपर और बात करेंगे। तो पहले आपकी क्यूरियोसिटी जगाने का काम करें, बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट लेक्चर वी आर स्टडीइंग अबाउट द सेल बायोलॉजी, एंड इफ वी आर एक्चुअली स्टडीइंग अबाउट द सेल बायोलॉजी, वी हैव टू ओवरलुक द इंटररिलेटेबल पार्ट ऑफ दिस सेक्शन आल्सो, राइट? सो यहाँ प्रोटीन, जैसे आपने कहा, प्रोटीन इज बेसिकली क्या है? मसल्स बिल्डिंग ब्लॉक के काम आता है, राइट?
अच्छा, आइए जरा साइटोप्लाज्म, अब ये इन सब के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम अपने आप में यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि वहां पे सबकी डेफिनेशंस प्रॉपर्ली दी गई हैं, आगे जाके मैं कुछ स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, जब हम बात करें व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंस क्या है सब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में। तो बहुत सारा डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल में देयर आर सो मेनी सेल ऑर्गेनल व्हिच आर एब्सेंट, बट इन यूकैरियोटिक सेल ऑल दी सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। मतलब वो ऑब्वियसली इवॉल्व होके आया, इवॉल्व होके मतलब सबसे प्रिमिटिव सेल सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना, फिर इसकी इवोल्यूशन के बाद वी गेट यूकैरियोटिक सेल, राइट। अब बात करें इसमें साइटोप्लाज्म है, मीसोसोम्स है, राइट, इट इज अ ब्रदर ऑफ राइबोसोम्स, राइट। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको कोई भी कभी भी ये पूछे एक बेसिक डिफरेंस बता दीजिए, लाइक फॉर व्हाट, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जाके उसे बस एक बात बोलिएगा, इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज एब्सेंट, बट इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यस, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जैसे किसी स्कूल में प्रिंसिपल एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है हु इज कंट्रोलिंग ऑल द अदर थिंग्स, वैसे न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हु इज लाइक कंट्रोलिंग ऑल द अदर ऑर्गेनल्स। राइबोसोम्स हो गया, आगे जाके आप लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, गोल्गी अपार्टस पढ़ेंगे जिसको गोल्गी बॉडी के तौर पे कहा जाता है, राइट। ईआर पढ़ेंगे आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कहा जाता है, रफ ईआर, लाइक स्मूथ ईआर, ये सब इसमें कहां है, इसमें तो एब्सेंट है ना। तो इसमें बेसिकली न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, बट उसका एक छोटा सा पार्ट, मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट तो नहीं कहूंगा मैं, जो बेसिकली एक छोटा सा पार्ट जो बाद में इवॉल्व होकर न्यूक्लियस बना वो मौजूद होता है, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड इज नथिंग, इट इज जस्ट अ फ्लूइड जो अपने आप में न्यूक्लियस का थोड़ा बहुत अपने आप में काम कर रहा है, और इसके पास डीएनए मौजूद होता है। डीएनए की फुल फॉर्म भाई इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, deoxyribonucleic acid, this is important, right? deoxyribonucleic acid, DNA। तो इसमें आपको याद रखिएगा न्यूक्लियस एब्सेंट बट न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस जिसमें डीएनए अपने आप में उपस्थित होता है, राइट। साइटोप्लाज्म की बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं थोड़ा सा आपको जरा बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूं, चलिए। अब सेल की मैं बात करूं बेटा ये साइटोप्लाज्म आप अब आगे जाके भी पढ़ने वालों, तो मैं यहीं से बताते हुए चल रहा हूं, आपको लगेगा सर ने बताया नहीं, यहां पे लिख दिया सर ने बताया है, तो थोड़ा सा बता देते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, क्योंकि आगे जाके आपको डेफिनेशन और इसके फंक्शंस क्या क्या है वो मिलेगा। ये बेसिकली सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद, अगर ये सेल बनाया मैंने, ठीक है, अब ये मैं एडवांस सेल बना रहा हूं, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं बना रहा हूं, फटाफट एक अपने ओवरव्यू के लिए ताकि मैं रिवाइज कर पाऊं। इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये सेल वॉल है, ठीक है। अब बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको जानना जरूरी है, जो आगे आप मैं बताऊं, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल और नॉट, और यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है या नहीं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्यूरियोसिटी के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस ही यही आते हैं बेटा, किसमें क्या प्रेजेंट होता है किसमें क्या एब्सेंट होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अगर मैं बात करूं तो हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, इट इज अ फ्लूइड, इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट, इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन बोथ, बेसिकली प्रोकैरियोटिक में मौजूद होता है, यूकैरियोटिक में मौजूद होता है। इसका मेन काम क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, लाइक देहरादून डिफेंस एकेडमी इज प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म, each NDA student, CDA student, FCAT student is a platform, right? Where we are actually facilitating our part of knowledge. Similarly, cytoplasm is act like a platform where all the cell organelles perform their actions. जो जिसमें भी वो बने हैं, जैसे राइबोसोम। अब ये थोड़ा सा ना क्या होता है, साइटोप्लाज्म स्टिकी नेचर होता है, कैसा होता है, स्टिकी, चिपचिपा, स्टिकी जिसको आप बोलते हो, तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स इस पे होल्ड कर जाते हैं, है ना, और वो अपना काम, और बेसिकली क्या है, ये प्लेटफॉर्म का काम करता है। अब न्यूक्लियस को कोई इंफॉर्मेशन देनी है भैया राइबोसोम्स को कि भैया प्रोटीन जल्दी जल्दी सिंथेसाइज करो, तो वो इंफॉर्मेशन थ्रू साइटोप्लाज्म होके किसके पास जाती है, राइबोसोम्स के पास जाती है। फिर लाइसोसोम्स, भाई सबको इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस ही प्रोवाइड कर रहा है, तो किसके थ्रू कर रहा है, साइटोप्लाज्म के थ्रू कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ते किस तरीके से, दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाए तो बेसिकली उनका तरीका देखिए किस तरीके से वो समझा रहे हैं, ताकि आपको याद करने में
like memorize it, it will definitely gonna help you. आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जरा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस, पहली बात आपको बता दिया था, प्रो मींस बिफोर, कैरियो मींस न्यूक्लियस, ठीक है, बिफोर न्यूक्लियस जो अपने आप में सेल बना। प्रोकैरियोटिक सेल में इतना कुछ आपको जानने के लिए क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स इतने मौजूद नहीं है, हम यूकैरियोटिक में असली सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें देयर आर ऑल द अदर सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच वी हैव टू स्टडी अबाउट, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल है जो सबसे पहले आया, वो इवॉल्व होकर यूकैरियोटिक सेल में गया, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, यूकैरियोटिक सेल, एडवांस सेल। लेकिन कुछ पॉइंट्स अभी नीचे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने लिखे हैं, ये बस अभी स्ट्रक्चर के तौर पे आपको डायग्राम के तौर पे मैंने यूकैरियोटिक सेल व्हिच इज आल्सो नोन एज एडवांस सेल। ये क्या है बेटा, ये एक एडवांस सेल है। एडवांस सेल मतलब व्हिच इंक्लूड्स ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनल, राइट। ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनल से मेरे कहने का मतलब है यूकैरियोटिक सेल कंटेन न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपको बताया इट इज एडवांस सेल, इट विल गोना इंक्लूड ऑल द अदर सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। यू मींस ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस मतलब एक्चुअल न्यूक्लियस इसमें मौजूद है, जिसको हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहते हैं, एक्चुअल न्यूक्लियस ये पोजेस करता है, ठीक। आइए जरा जरा थोड़ा सा इसकी नजर डालते हैं, यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ दिस सेल, अभी आगे जाके हम बात भी करेंगे इसको पावर हाउस के तौर पे क्यों कहा जाता है। जैसे हर शहर का एक पावर हाउस होता है ना, जहां से सारी बिजली अपने आप में सारे घरों में मौजूद फैसिलिटेट की जाती है। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसा है जो पूरे सेल ऑर्गेनल्स को, मतलब सेल में सबको एनर्जी की आवश्यकता है, ऐसा तो नहीं मुझे आपको पढ़ाते हुए एनर्जी की आवश्यकता है, मुझे एनर्जी सेल्यूलर लेवल में कहां से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। तो दिस इज पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़िए कि उसको याद करने का तरीका आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज़ इट इज प्रोवाइडिंग व्हाट, एनर्जी इन अ केमिकल फॉर्म। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे एटीपी के बारे में पढ़ेंगे, ये एटीपी बनाता है, ग्लूकोज को बेसिकली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज एटीपी, इट इज अ केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, सेल्यूलर एनर्जी है, राइट। क्वेश्चन इस तरीके से भी आया है कि भैया सेल के अंदर, देखिए क्वेश्चन सुनिएगा मेरा अभी, आई वाज गोइंग थ्रू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था, व्हिच पार्ट ऑफ द सेल परफॉर्म सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, देखिए क्वेश्चन कहां से क्या बना दिया उन्होंने, सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब कोशिकीय वाष्पीकरण, जो सॉरी कोशिकीय जो रेस्पिरेशन है वो अपने आप में कौन करता है, मतलब ऑक्सीजन का इंटेक करना, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है इसको, ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, एटीपी में, किसमें, एटीपी। अभी आगे जाके पढ़ेंगे आप, एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार तो डायरेक्ट अपना इसमें क्या एब्रिविएशन के तौर पे दे देगा, आपको पूछेगा इसका बताइए क्या है, एटीपी स्टैंड्स फॉर, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया आपने, ये एसईआर है, एसईआर से कंफ्यूज मत होइएगा, ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैं बताऊंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे जाके होता क्या है, स्मूथ ईआर होता है, रफ ईआर होता है, आरईआर, एसईआर भी देखा आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और क्या है, राइबोसोम्स है, सेंट्रियोल्स है, गोल्गी बॉडी है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बारे में अभी आपने पढ़ा, इट इज व्हाट, इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, सॉरी नॉट न्यूक्लियस, इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, राइट, which provides a platform to all the other cell organelles, right। अगर आप याद करें कि भाई प्लेटफॉर्म जैसे दर्पण डिफेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म है, फैसिलिटेटिंग द पावर ऑफ नॉलेज इनसाइड यू, है ना, वैसे साइटोप्लाज्म इज प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म टू द ऑल द अदर सेल ऑर्गेनेल्स सो दैट न्यूक्लियस कैन फैसिलिटेट ऑल द knowledge that how to get survive, how to perform actions, तो वो सारे थ्रू किसके थ्रू कर पा रहा है, साइटोप्लाज्म के थ्रू कर पा रहा है। न्यूक्लियस मौजूद है, राइट, इंटरमीडिएट प्लाज्म, लाइसोसोम, सारे इंपॉर्टेंट है। अभी हम सबके ऊपर वन बाय वन इंपॉर्टेंट की बात करेंगे और किसको किस तरीके से जाना जाता है, क्वेश्चंस उसमें क्या क्या आए, सबके ऊपर अभी बात होगी। लेकिन ये तो अभी आपको स्ट्रक्चर बताया गया यूकैरियोटिक सेल का, थोड़े देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस फॉर प्रोकैरियोटिक सेल, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या है बेटा, ये पॉइंट, these are the cell do not contain nucleus instead of their genetic material, they have genetic material, जिसमें मैंने आपको बताया, अभी आपने पीछे पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, डीएनए, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, यस, डीएनए में आपके बेसिकली जेनेटिक मटेरियल व्हिच यू आर इनहेरिटेड फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, जो आप अपने पूर्वजों से इनहेरिट करके नॉलेज लेके आए हैं कि आप आगे जीवन किस तरीके से व्यतीत करेंगे। व्यतीत करने का मेरा मतलब है ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग्स की तरह रहेंगे, डॉग डॉग की तरह रहेंगे, तो दिस आर इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन इन आवर बॉडी ऑलरेडी कोडेड कि भैया ये ऐसे ही होगा, राइट।
इनमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, इस फ्लोटिंग, अब ये नॉर्मली फ्लोट कर रहा है। अब एडवांस सेल में तो ये नॉर्मली फ्लोट नहीं कर रहा है क्योंकि इवॉल्व हो गया है, इसने अपना अलग एकदम क्षेत्र बना लिया है, न्यूक्लियस बना लिया है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अभी आपको न्यूक्लियस का प्रॉपर स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाऊंगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली क्या कर रहा है, फ्लोट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट कर लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप में केवल फ्लोट कर रहा है इन द साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बोला था इट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे ये बेसिकली अपने आप सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लिक्विड कंपोनेंट इनसाइड द सेल, साइटोप्लाज्म को लिक्विड कंपोनेंट, इट इज अ फ्लूइड इनसाइड द सेल, राइट। दिस रीजन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियर, जिसमें अब देखिए इट इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, तो हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, न्यूक्लियोइड नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, तो उस पर ट्रू न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं होता, लेकिन जेनेटिक मटेरियल मौजूद है भैया, तभी तो। ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल इज ओनली प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी आप डायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जानेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये 5 किंगडम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भैया इनमें जो सेल्स मौजूद हैं सब में अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट है। जैसे मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बोथ आर व्हाट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट अगर दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो दोनों के लिए अलग अलग किंगडम बनाने की जरूरत क्या पड़ी, जरूरत यह पड़ी कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल है। अब आप बोलोगे सर यूकैरियोटिक सेल आल्सो प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेटा यूकैरियोटिक सेल जनरली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं। उसका एग्जांपल है प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। और मोनेरा में केवल क्या मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके आप इसके बारे में थोड़ा सा और बताया जाएगा। Chronologically, these came before eukaryotes, जैसे आपको मैंने बताया, and prokaryotes are less evolved organism than eukaryotes. Already done, सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। Most prokaryotics are bacteria and unicellular, ये भी बता दिया मैंने। बैक्टीरिया जनरली, बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी जब हम मोनेरा पढ़ेंगे डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल, और इसके बाद सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जनरली क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे मौजूद होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। One prokaryotic cell of E. coli is an entire E. coli, whereas humans which are of eukaryotic origin requires, देखिए कितने cells to function, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक के लिए E. coli is the cell, right? Only single cell is important for unicellular organism to perform all the other functions, right? But मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस, कितने सेल्स की आवश्यकता पड़ जाती है भैया, यहां तो मैं तो गिनती भी भूल गया कितने सारे हैं ये, ठीक है। लाखों करोड़ों सेल्स हमारी बॉडी में अपने आप में मौजूद होते हैं, ठीक, जो अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। और ये एक छोटा सा पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। जो एडवांस सेल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसको काफी सारे सेल ऑर्गेनेल्स अपने अंदर लाइक भरने पड़ते हैं, इस वजह से वो अपने आप में साइज में छोटे होते हैं। नेक्स्ट, prokaryotes also do not have certain other structures like eukaryotic such as, भैया अभी आपने स्ट्रक्चर में ही देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट वैसे अगर आपको मैं बताऊं यूकैरियोटिक में मौजूद होता है, लेकिन जब आप आगे जाके प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ोगे ना बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जनरली क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो अपने आप में सनलाइट, जो लाइट एनर्जी है उसको एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में मदद करता है, ठीक है। तो जनरली क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल प्लांट सेल में होता, तो यूकैरियोटिक सेल में है। थोड़ा सा इंटररिलेटेबल कंटेंट पहले से बताते हुए इसलिए चल रहा हूं ताकि आपकी जिज्ञासा जगी रहे, ताकि आप ये सारी बातें आपने पहले भी सुनी होंगी लेकिन अच्छे से बताना हमारा फर्ज है। तो यूकैरियोटिक बेसिकली, यूकैरियोटिक में किसमें मौजूद होता है, प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं है प्लांट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, देयर आर आल्सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्लोरोप्लास्ट उसमें मौजूद होता है, एनिमल सेल में ही एब्सेंट होता है। जैसे हम तो नहीं बना सकते अपने आप खाना, है ना, कोई मिल गया हमें जो वो एलियन आया था वो कहता था धूप धूप, तो बेसिकली क्यों, क्योंकि मे बी उसके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो जो उसको अपने आप में क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है थ्रू लाइट एनर्जी, है ना। तो लेकिन हम तो अपने आप में नहीं बना सकते, क्लोरोप्लास्ट हमें मौजूद नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता तो हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम धूप में खड़े हो जाते हैं, अपने आप ही बॉडी में एनर्जी आ जाती है ना। वैक्यूल्स, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे वैक्यूल्स क्या है, दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस, ये एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं,
ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं फटाफट क्योंकि यहाँ पे आ गया। ये हम ये पढ़ रहे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित नहीं है। These are the organelles which are not present in prokaryotic cell but are present in eukaryotic cell, which is also known as advanced cell, right? Which we got after the evolution of prokaryotic cell, right? These are the empty spaces, right? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे जाके आप पढ़ेंगे किस किस सिंथेसाइज में काम आता है, स्मूथ ईआर किस सिंथेसाइज में काम आता है। सिंथेसाइज मतलब भाई हर कोई परफॉर्म कर रहा है एक एक्शन, राइट? बेवजह मौजूद नहीं है वहां पे, है ना? सबका अपने आपने। अब आप बोलोगे सर ये एम्प्टी स्पेसेस का क्या काम है? भैया अमीबा एक तरीके का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना? अब उसके पास आपकी तरह आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं है कि हर जगह के लिए। अब वो कोई अपना बेसिकली फूड रखना चाहता है तो कहां रखेगा? एम्प्टी स्पेस पे रखेगा। तो these are the empty spaces present inside the cell, ठीक है? तो वो empty spaces basically आपको किसके काम आते हैं? कुछ चीज आपको भर के रखनी है, स्टोर करके रखनी है, तो वो empty spaces उसके आपके घरों में भी empty spaces मौजूद होती हैं। तो ये similarly like that। प्रोकैरियोटिक के बारे में ही पढ़ रहे हैं बेटा। प्रोकैरियोटिक डीएनए वेरी इंपॉर्टेंट, इज थिन, पतला होता है, इवॉल्व नहीं हुआ है, इज थिन, सर्कुलर, थिन। अच्छा, ये पॉइंट टू पॉइंट देने से मेरा क्या मतलब है? क्योंकि असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से वो स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइक प्रीवियस। तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना आसान और मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट भी है। प्रोकैरियोटिक डीएनए इज थिन एंड सर्कुलर हैविंग नो रियल एंड्स। कोई रियल एंड्स नहीं है इसके, मतलब रियल एंड्स क्योंकि ये ट्रू न्यूक्लियस अपने आप में मौजूद है, बट ट्रू न्यूक्लियस के तौर पे मौजूद नहीं है। लाइक रबर बैंड, एक रबर बैंड देखा, ट्रू एंड नहीं है। और हेयर टाई, एंड इट लैक्स क्रोमोसोम्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम्स नहीं मौजूद होता, ओनली डीएनए मौजूद है ना? क्रोमोसोम्स जैसे कि हमारे पे कितने 20 कितने पेयर मौजूद होते हैं टोटल? अगर आपको बोला जाए तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में मौजूद होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, डॉग में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, कैट में, जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स है, थोड़ा सा इनका याद कर लीजिएगा। आगे जाके मैं क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा सा लाइट और डालूंगा, है ना? चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूं। आइए सर, न्यूक्लियस जो होता है बेटा, इट इज नोन एज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। इट इज नोन एज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, है ना? ये बेसिकली थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। ये हम ट्रू न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, दिस इज ट्रू न्यूक्लियस, जो एक्चुअल न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक वाला नहीं, जो एक्चुअल न्यूक्लियस है। थोड़ी सी लाइट यहीं पे डाल रहा हूं। न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स का बना होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मेरा कहने का मतलब है रेशियो की तरह। अगर मैं ये कमीज अपनी फाड़ दूं, थोड़ा सा ऐसे ही फाड़ दूं, तो आपको तागे तागे नजर आएंगे। सिमिलरली अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में न्यूक्लियस को देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में जैसे आप देखोगे तो आप देखोगे न्यूक्लियस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब तागे रेशे रेशे के तौर पे बना हुआ है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम फर्दर अपने आप में बने होते हैं जीन्स। इससे बने होते हैं जीन। दीज आर द कोडेड जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली जीन्स को हम कोडेड जेनेटिक मटेरियल के तौर पे कहते हैं। जीन्स फर्दर डिवाइड्स अप इनटू डीएनए स्लैश आरएनए। थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का स्ट्रक्चर दे दिया मैंने कि ताकि आपको याद करने में स्टार्ट हो ट्रू न्यूक्लियस के अंदर पे क्या मौजूद होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक में डायरेक्ट जो जेनेटिक मटेरियल फ्लूइड के तौर पे तैरता रहता है, ठीक है? इवॉल्व नहीं हुआ। इवॉल्व होने के बाद तो कुछ ऐसा बना इसका स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन के बाद तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है ना? तो उसमें क्या मौजूद नहीं होता? देखिए पॉइंट टू पॉइंट याद जरूर रखिएगा, बिकॉज़ दिस कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ वी हैव फोकस इन पॉइंट टू पॉइंट स्टडी, राइट? नेक्स्ट, having small plasmids flowing around the cytosol, eukaryotes do not have this। अच्छा, these are very important, ठीक है? साइटोसॉल एंड प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? बेसिकली अपने आप में अब इतना ज्यादा इवोल्यूशन इनका हुआ नहीं, बट अपने आप में डाइजेशन का काम तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना? तो ये अपने, क्योंकि भाई इनहेरिट आगे करना है, उन्होंने अपना लाइक भरण पोषण भी करना है, तो ये बेसिकली साइटोसोल्स, ये प्लाज्मिड्स, ये बेसिकली क्या है? डाइजेशन के पर्पस के लिए अपने आप में इनको एज अ सेल ऑर्गेनल के तौर पे प्रोकैरियोटिक यूज करता है। I have included each and every point which is very important and have seen in any of the competitive examinations like NDA, CDSE and APCAT. That is how I am including each and every point one by one, right? Very important, contain no membrane। किसी भी, अब देखिए अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, सारे तो नहीं, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन, उनके प्रोटेक्शन के लिए मेम्ब्रेन यूज होगी।
यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई मेम्ब्रेन यूज नहीं है। इन्होंने तो न्यूक्लियस नहीं बना पाया तो मेम्ब्रेन कहां से फॉलो अप करेंगे, है ना? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इनके नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनपे कोई मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं है। These can sometimes have whip-like flagella or cilia to help with the movement. अभी आपको मैं अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा दूं, ये है देखिए सीलिया एंड फ्लैगेला। ये क्या है? ये इनको मूवमेंट, राइट, पैर लाइक हमारे पे जैसे हाथ पैर है, इनके पास तो नहीं है। और वैसे ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करना ही है, एक ही जगह तो नहीं रह सकते। तो दे यूज सीलिया एंड फ्लैगेला फॉर द मूवमेंट, राइट। और इनका मूवमेंट कैसा होता है? लाइक ऐसे जैसे तैरते हैं ना, तो बेसिकली इस तरीके का मूवमेंट होता है ना? आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं बेटा। Cilia and flagella for the with movement, right? Prokaryotes have few main shapes. जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कुछ ही शेप्स में मौजूद होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ए राउंड स्फेरिकल शेप, जिसको कॉकाई शेप कहते हैं आप, राइट। राउंड और स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल गोल गोलाकार तौर पे इनकी ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, जिसको कोकाई शेप कहते हैं आप, ठीक है। बेसाइले रॉड शेप मतलब एक सिलेंड्रिकल तौर पे ऐसे भी मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसको आप बेकाइली रॉड शेप कहते हैं। लास्ट स्पाइरला मतलब स्पाइरल आप समझ गए, ऐसे तरीके से, इस तरीके से भी अपने आप में स्पाइरल तौर पे मौजूद होते हैं। तो ये तीन इसके स्ट्रक्चर्स मौजूद है। देखिए आई हैव इंक्लूडेड ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आप लूसेंट खोलिए, यू कैन सी ऑल दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लाइक जो अपने आप में प्रोकैरियोटिक के लिए, कोई आपको इतना प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं बताएगा, बट वी हैव इंक्लूडेड ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स which is important for competitive analysis and for competitive examinations, right? So इसको एक बार थोड़ा सा ओवरलुक कर लीजिएगा from point 1 to the last point, जहां पे point 1 में हमने पूरी बात करी, सब आपको बताया गया है। आइए जरा अभी हम प्रोकैरियोटिक के ऊपर ही बात कर रहे हैं भैया, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस जो बेसिकली बने हैं वो डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में बने हैं, ठीक। आइए जरा सम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो अपने आप में एग्जांपल के तौर पे एंथ्राइसिस। अच्छा, अभी जब हम डायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तब आप देखेंगे कि मैं मोनेरा में कुछ एग्जांपल्स, अभी डायवर्सिटी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा बता रहा हूं एग्जांपल्स के तौर पे आप देखेंगे, ठीक है। एंथ्राइसिस एक तरीके का क्या है? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। फॉर्म व्हाट आर नोन एज एंडोस्पोर्स व्हिच, अच्छा एंडोस्पोर्स क्या है ध्यान रखिएगा, क्या बोला उसने? कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया लाइक एंथ्राइसिस फॉर्म व्हाट आर नोन एज एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स क्या काम करते हैं? व्हिच हेल्प द बैक्टीरिया टू सर्वाइव हार्श कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एकदम से अभी लद्दाख के किसी पहाड़ी में बर्फीले इलाके में भेज दूंगा, तो हार्श कंडीशन से आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन ये अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व तो करना ही पड़ेगा भैया, हार्श कंडीशन जैसे भी हो जीना तो है ही, ठीक है। तो चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है। Once the harsh condition are gone, these cells returns to form spore formation into normal proliferating state। तो एंडोस्पोर्स बेसिकली क्या होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में जनरली क्या होता है, थोड़े ऐसे ऐसे एंडोस्पोर्स बन जाते हैं जो हेल्प करते हैं इनको अपने आप में। एंडोस्पोर्स हेल्प्स to survive them in harsh condition, and once that harsh conditions जो अपने आप में होती है वो स्टॉप हो जाए, दे बैक टू द स्पोर फॉर्मेशन, जो अपने आप में सिंपल अपने आप में क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वो स्पोर्स हार्श कंडीशन में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एंडोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, भीतरी तौर पे, राइट। अच्छा, अंदर की तरीके पे these often have cell and cell capsules to help prevent them from being destroyed by antibodies, ठीक है। these often have cell wall and cell capsules to help prevent them from being destroyed by antibodies like white blood cell, mycoplasma or bacteria that have no cell wall and therefore no definite shape। कहने का मेरा मतलब है ये अपने आप में कुछ कुछ में आपको प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल उपस्थित नजर आती हैं, ये इसलिए प्रोवाइड। अब ये व्हाइट ब्लड सेल पता है कहां से आया? प्रोकैरियोटिक बहुत सारी यूनिट ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं जो अनवांटेड बैक्टीरिया के तौर पे नजर आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा देखिए, मैं इंटरलेटेबल कंटेंट के ऊपर मुझे मजा आता है बात करने में। जो ब्लड होता है ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर इसकी बात हुई है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं आपको,
एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू, जिसको संयोजी उत्तक के तौर पे जाना जाता है हिंदी में। इसको अगर डिवाइड करें, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। प्लाज्मा विच इज 90% ऑफ वाटर। इधर हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ है ब्लड पार्टिकल्स। क्या है? ब्लड पार्टिकल्स। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ब्लड पार्टिकल तीन पार्ट्स में डिवाइड है, आरबीसी, अब जो ये डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और प्लेटलेट्स। आरबीसी को अर्थ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अर्थ्रोसाइट्स, व्हाट इज द बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल का। डब्ल्यूबीसी, अब डब्ल्यूबीसी इज एक्चुअली जो आपकी बॉडी में होता है डिफेंस मैकेनिज्म को बनाने में काम करता है, कि अपने आप पे कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया या कोई भी अनवांटेड पार्टिकल आपकी बॉडी में, भाई अब ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे किसी भी स्पोर्ट से अंदर जा सकते हैं, ब्लड में घुल जाते हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी अनवांटेड पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो उसको हमारी बॉडी क्या करती है, उसको लड़ने के लिए अपने लाइक जवान तैयार कर लेती है। और वो लड़ने के लिए जवान तैयार कौन करता है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इन एंटीबॉडीज से बचने के लिए अपने कुछ प्रोकैरियोटिक सेल क्या कर लेते हैं, सेल वॉल बना लेते हैं। ये भी तो भाई तैयारी के साथ तो ये भी जाएंगे, तो कुछ में क्या कर लेते हैं, सेल वॉल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा, मैंने बोला ना ये सारे बैक्टीरिया आप आगे जाके कहां पढ़ेंगे, डायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है बायोलॉजी, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं रहने देंगे, राइट। तो ये सब आपको समझ आ गया, ये पूरे का पूरा अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, राइट। इतना कोई डीपली जाके आपको प्रोकैरियोटिक सेल नहीं बताएगा, कि ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन लाइक इसको थोड़ा सा पीछे देख के आप ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हो। अब आ जाइए, एक्चुअल में आप बोलूंगा प्रोकैरियोटिक तो कुछ नहीं था, ये तो केवल आपको देखने समझाने के लिए थोड़ा सा था। अब एक्चुअल सेल बायोलॉजी यहां से स्टार्ट होती है, सेल स्ट्रक्चर से। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, भैया प्रोटेक्शन के लिए सेल मेम्ब्रेन इसमें मौजूद होती है, जिसको आप सेल वॉल भी बोल सकते हो। अब मैं अपने तरीके से आपको पूरा सेल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं अपनी तरीके से आपको पूरा सेल वॉल अच्छे से समझाऊंगा कि भाई एडवांस सेल अपने आप में किस तरीके से मौजूद होता है, एडवांस सेल में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, ठीक। अगर मैं एडवांस सेल की बात करूं तो सबसे बाहर वाला कवर कहलाता है सेल वॉल। अब मैं फटाफट आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, यहां से सेल बायोलॉजी एक्चुअल वाली स्टार्ट होगी, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस भी यहां बनेंगे। सेल वॉल याद रखिएगा, थोड़ा सा यहीं पे एनिमल और प्लांट पे डिफरेंशिएट करते हुए चलूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि एनिमल और प्लांट सेल आगे जाके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली इन इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। अब आप बोलोगे सर ये एडवांस सेल है तो सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए ना, मैंने बोला नहीं बेटा, जब डायवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे व्हाई प्लांट सेल इज, भाई प्लांट और एनिमल दोनों मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म है, एक ही किंगडम में रख देते नहीं, है ना। प्लांट एक ही जगह पे रहते हैं, रिजिड बॉडी होती है उनकी, रिजिड, ताकि वो सर्वाइवल कंडीशन को, फिजिकल कंडीशंस को झेल पाए। तो वो अपने सेल के बाहर एक सेल वॉल बना लेते हैं विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल वॉल किससे मिलकर बनती है। सेल्यूलोज बेसिकली एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, अभी मैंने फूड में दिखाया था ना आपको कार्बोहाइड्रेट। यस, कार्बोहाइड्रेट तीन तरीके का होता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में सेल्यूलोज अपने आप में मौजूद होता है। बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। इंटररिलेटेबल कंटेंट बच्चे, इंटररिलेटेबल कंटेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली किसको बनाता है, सेल वॉल डेवलप करता है। अब ये सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती। बिकॉज व्हाई, बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं सर व्हाई दिस इज लाइक हैपनिंग, व्हाई सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बिकॉज एनिमल हैव टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दे डोंट हैव टू स्टैंड लाइक ओनली एट वन प्लेस, राइट। उनको थोड़ी सी क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए। और भाई मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो मेरा स्ट्रक्चर है वो सेल पे डिपेंड कर रहा है। तो मेरे बॉडी में सेल वॉल मौजूद नहीं है, बट मेरी बॉडी में क्या मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हो। क्या मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन also known as plasma membrane,
ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है? किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड्स एंड फैट। फैट और लिपिड से मिलकर बनी होती है। फैट और लिपिड्स अपने आप में थोड़ा सा इनको कैसा एक लचीलापन प्रोवाइड करवा देते हैं। देखिए ना, मैं अपने हाथ मूव कर सकता हूं, दौड़ सकता हूं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं। व्हाई? बिकॉज मेरी सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो पहली लाइक सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज मेड अप ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स, राइट। तो वो बेसिकली उसको क्या प्रोवाइड करवा रही है? ये क्वेश्चन आता है बेटा कौन सी किस चीज से मिलकर बना है, यहां पे ही हमें अपना सेग्रीगेट कर लेते हैं कि ये बच्चा तो एग्जाम निकालेगा, ये बच्चा रह जाएगा, क्योंकि वो बच्चा अपने आप में हर एक चीज को इंटर रिलेटेबल तौर पे पढ़ रहा है और उसको लर्न करने की कोशिश कर रहा है, राइट। इसके बाद अंदर इसके न्यूक्लियस मौजूद होता है। बाहरी सारे तौर पे ये फ्लूइड से मौजूद। अब ये जो मैंने आपको बताया था फ्लूइड क्या है, ये साइटोप्लाज्म। इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा वेयर साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, तो आपको डायरेक्ट बोलना है इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इन बिटवीन। याद रखिएगा मेरे पॉइंट, इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, दैट इज साइटोप्लाज्म। दैट इज व्हाट साइटोप्लाज्म। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे अगर कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, सो मेन फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नथिंग, it is providing the platform for all the cell organelles and also the nucleus so that they can coordinate with each other, right? Okay, ये तो हम बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन सब पे मौजूद होती है, प्लांट में मौजूद होती है और एनिमल में मौजूद होती है, बट एनिमल की सबसे आउटर कवरिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल वॉल केवल प्लांट सेल में मौजूद होती है, जो बेसिकली क्या है? सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। अभी आगे जाके आप पढ़ोगे कि थोड़ा सा जब मैं डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करूंगा तब तो मुझे और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि फंजाई की सेल वॉल पे क्वेश्चन आया था कि फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, क्योंकि फंजाई इज द लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ अ किंगडम। उसकी सेल वॉल बनी होती है चिटिन से मिलकर। क्वेश्चन आया था ये, CHITI है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चे, लेकिन याद करने वाला याद कर जाता है, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ना जानता है। अच्छे से पढ़ना, उसको सेग्रीगेट और स्ट्रक्चरल फॉर्म में पढ़ने का तरीका पता है, और जिसने ये तरीका हैक कर लिया, दे कैन क्लियर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। उनके लिए कोई कॉम्पिटिशन ज्यादा बड़ा नहीं बन जाता, ठीक है। तो अभी बेसिकली मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाया, और इसके अंदर भी सेल ऑर्गेनेल्स थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट बताए। तो कौन कौन से? राइबोसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ठीक है, वैक्यूल, गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, साइटोप्लाज्म, सबको वन बाय वन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अभी फटाफट से आ जाइए, नेक्स्ट पार्ट में हम बढ़ते हैं। अच्छा, एक याद रखिएगा, जिन सेल्स में प्रोकैरियोटिक्स, जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद है, अगर जिन ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद है, उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। और जिन ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल मौजूद है, यूकैरियोटिक सेल मौजूद है, इनको कहते हैं यूकैरियोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यूकैरियोट्स मतलब दीज आर द ऑर्गेनिज्म, राइट। तो जिनमें यूकैरियोटिक सेल मौजूद है यूकैरियोट्स, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद है प्रोकैरियोट्स। लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट। Eukaryotic cells, these cells contain a nucleus which is a membrane bound organelle, ठीक है। न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। मैंने कहा ना, प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे आपने पॉइंट पढ़ा था कि इनके किसी भी सेल ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन मौजूद नहीं, क्योंकि इतने इवॉल्व नहीं है। यूकैरियोटिक सेल तो तसल्ली से बनाया ना, इवॉल्व होके कि भाई देखा उसने सर्वाइवल को, देखा क्या क्या चीजें जरूरत है। जैसे आप कहीं नई जगह पे जाते हो मान लीजिए, तो आप देखते हो भैया यहाँ फ्रिज की जरूरत पड़ेगी, गर्मी है, या एसी लगवाना है, या यहाँ गीजर लगवाना है। तो ये सारी चीजें आप सर्वाइवल को देख के देखते हो ना, वैसे यूकैरियोटिक भी अपने आप को डेवलप करा। उसने देखा कि उसके न्यूक्लियस के बाहर थोड़ा मेम्ब्रेन की आवश्यकता है, ताकि न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड रहे, बिकॉज इट इज अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और दैट सेफली स्टोर द सेल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया था कि उस पे डीएनए, भाई जेनेटिक कोडिंग उसके पास है, तो सारा these all the genetic information are stored like inside the cell in the center position. Next, come to the next part. Much larger and more evolved than prokaryotes. पहले बता चुके हैं यूकैरियोटिक सेल्स लार्जर होते हैं, और क्या होते हैं? ज्यादा इवॉल्व होते हैं प्रोकैरियोटिक। कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ऑलरेडी नो।
ठीक है, सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, दीज आर द सेल्स फाउंड विद इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर ये कहां से आया प्लांट्स फंजाई, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करें, तो मैंने आपको जैसे बोला कि वी हैव 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम है हमारे पास, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को हमने इन्हीं 5 किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, ठीक है, फिर है फंजाई, फिर है प्लांट्स, और लास्ट है एनिमल्स। ठीक है, तो इन तीनों में, वैसे इसमें भी यूकैरियोटिक सेल मौजूद होता है बेटा, बट ये तीनों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यूनिसेलुलर है। व्हाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर थिंग्स, को भी हम इधर डाल सकते थे, बट ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर के साथ साथ दिस पोजेस यूकैरियोटिक सेल, दिस प्रोसेस व्हाट यूकैरियोटिक सेल। मोनेरा क्या है, मोनेरा पे केवल प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद है और यूनिसेलुलर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आल्सो यूनिसेलुलर। ठीक, मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, भैया आगे जाके हम सेल बायोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म को अच्छे से समझ पाए, बिकॉज़ दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। कम नेक्स्ट टू द कंटेन मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे कि हमने देखा स्ट्रक्चर में। अब आइए वन बाय वन सारे, अब क्योंकि हम लास्ट के टॉपिक में आ गए, वन बाय वन हम सारे सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर ईच और क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसपे क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस वो करते हैं उसके बारे में बात करें। न्यूक्लियस, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यस, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस पे है ना। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं, जैसे कि पीछे मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक है, और इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर आप ये सेक्शन देख रहे हैं तो थोड़ा उसमें न्यूक्लियस को इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिएगा, जो मैं बना रहा हूं। जो न्यूक्लियस होता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रेशो की तरह मौजूद स्ट्रक्चर होता है, इट इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम, known as chromosomes. This chromosome further divides up into genes. This is a genetic code material, जो जीन होते हैं ना, जीन्स हमारे इस पे यहाँ ट्रांसफर हो गए। जीन्स फर्दर डिवाइड्स अप इनटू डीएनए स्लैश आरएनए। थोड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज आरएनए? ठीक है, इंपॉर्टेंट जो बात मैं बताने वाला हूं वो ये है, डीएनए से सिंथेसाइज होकर आरएनए बनता है। क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इंटर रिलेटेबल कंटेंट, जिसमें आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, इंटर रिलेटेबल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल हेलिकल। डबल हेलिकल मतलब अगर बनाओ तो कुछ इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसा होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, है ना, डबल हेलिकल। हेलिकल मतलब ये शेप को हेलिकल कहते हो आप, राइट। डीएनए से सिंथेसाइज होके बेसिकली क्या बनता है? आरएनए बनता है। इसको सिंथेसाइज होके हम आरएनए बनाते हैं, मतलब इसको तोड़ने के बाद, सिंथेसाइज का मतलब आप समझ लिया करें, तोड़ने के बाद आरएनए बनता है। आरएनए को भाई आपको पता ही होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। भाई देखिए मैंने कितना तोड़ दिया न्यूक्लियस को। Why nucleus is known as central administrative head? It is a center of control for all the cell organelles because it possesses genetic informations like this. अगर आप ये स्ट्रक्चर अपने आप में समझ जाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा आपको। और इसका सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। कैसे होता है? सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने उसको लाइक डिवाइड कर दिया। न्यूक्लियर एनवेलप किसको कहते हैं? न्यूक्लियर भैया जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है बाहर की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया यूकैरियोटिक में तसल्ली से मिलकर बनाया गया है, सारे मेम्ब्रेन, सारे ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन मौजूद होती है, सारे तो नहीं बट जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, जिन पे इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद है और जो इंपॉर्टेंट काम के लिए वो मेम्ब्रेन डेवलप कर लेते हैं। द मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। आ जाइए भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोसोम्स आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स, also known as protein factory of the cell, very important। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, which cell organelle is known as protein factory of the cell?
So ribosome is the only cell organelle that performs प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन को तोड़ने का और उसको स्टोर करने का काम, स्टोर भी करता है ताकि फर्दर यूज कर पाए। कौन करता है? राइबोसोम। रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए एंड मेक प्रोटीन्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड से थोड़ा इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो डीएनए आरएनए भी बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बने हैं। डीएनए आरएनए हमारे और किससे मिलकर नहीं बने हैं? प्रोटीन से ही मिलकर बने हैं। अगर आपसे कोई पूछ भी ले कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनए और आरएनए कौन से प्रोटीन से मिलकर बने, तो हिस्टामाइन प्रोटीन बता दीजिए बस। ये थोड़ा एक्सटर्नल इंटर लेवल कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको, हिस्टामाइन प्रोटीन। ठीक है, यूपीएससी लेवल का कंटेंट है ये, राइट। आइए जरा, दिस वर्क विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये यहां पे थोड़ा सा पॉइंट मैंने जोड़ दिया क्योंकि राइबोसोम्स, अभी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, रफ ईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए है क्योंकि उस पे राइबोसोम मौजूद है। रफ का रफ बस इसी तरीके से याद रखिएगा, व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ बिकॉज इट पोजेस राइबोसोम्स, व्हाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ बिकॉज इट डज नॉट पोजेस राइबोसोम्स। तो ये प्रोटीन का सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, ये प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहा है रफ ईआर। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट फटाफट से हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। तो भैया ईआर का कुछ ज्यादा काम नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सिंथेसाइज प्रोटीन, दिस अपीयर रफ अंडर माइक्रोस्कोप because they have ribosomes which help in synthesize the protein all around its membrane। देखिए काम देख लीजिए कितना आसान है ना। जब आप एक चीज को पढ़ लेना तो बाकी सारे अंडरस्टैंड करने बहुत आसान हो जाते हैं, है ना। आइए जरा, अगर इन सब के बारे में आपने बात कर ली, न्यूक्लियस आपको समझ आ गया होगा, न्यूक्लियर एनवेलप आपको समझ आ गया होगा, राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल पे जाना जाता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है बिकॉज़ दे पोजेस राइबोसोम इनसाइड इट। उनके पास राइबोसोम्स, अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो रफ कहलाते हैं। नेक्स्ट की बात करूं मैं फटाफट से, गोल्गी बॉडी। गोल्गी अपार्टस बोलिए, गोल्गी बॉडी बोलिए, बोथ आर द सेम थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट काम, जैसे आपने जाना होगा आजकल आप स्विगी जोमेटो बहुत करते हैं, तो सेल के अंदर भी स्विगी जोमेटो इस तरीके से मौजूद होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो किसका है? गोल्गी बॉडी का है। साथ में इसके दो फंक्शंस है भैया, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे याद कर लें। सबसे पहला तो इसने आपने बता दिया कि अपने आप में क्या करता है, जैसे फूड पार्टिकल है, जैसे प्रोटीन में फूड पार्टिकल है, टू ट्रांसपोर्ट देम टू फाइनल लोकेशन, को ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, पैक करके लाइक यू नो उसको ट्रांसफर करता है टू अदर पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। किसका काम है? गोल्गी बॉडी का। और आल्सो डेवलप प्रोटीन सिंथेसाइजेस इन द रफ ईआर। काम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हेल्प करता है ताकि वो डेवलप कर पाए मोर एंड मोर राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन। मतलब राइबोसोम्स को बनाने का काम करता है किसके अंदर? रफ ईआर के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, शॉर्ट में मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर। दिस हेल्प इन सिंथेसाइजिंग लिपिड्स। लिपिड्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स फैट होते हैं, बड़े बड़े मतलब कॉम्प्लेक्स फैट। अब प्रोटीन तो नहीं, लेकिन क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं? फैट को सिंथेसाइज। भैया सेल के अंदर हर डाइजेशन होता है, मैंने आपको जैसे फूड के बारे में बताया था, प्रोटीन, फैट, विटामिन, तो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, ये सब सेल को जरूरत है, इसीलिए तो हम ले रहे हैं। ऑक्सीजन हम क्यों इनहेल कर रहे हैं? क्योंकि मेरे सेल को जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत है ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए एटीपी में, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के तौर पे जानते हैं, एंड दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। तो मैंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहली बात तो स्मूथ क्यों है? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन व्हाट? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अगर कंटेन करते तो रफ होते, है ना। स्मूथ किस लिए? क्योंकि इन पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं है, बट ये काम तो कर ही रहे। काम क्या कर रहे हैं? लिपिड्स को डाइजेशन का या लिपिड्स को सिंथेसाइज करने का काम कर रहे हैं। अंडर अ माइक्रोस्कोप दिस अपीयर्स स्मूथ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। खत्म, आगे बढ़िए। वेसिकल्स क्या होते हैं? बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा इनके बारे में, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मैंने हर एक पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स को इंक्लूड किया है ताकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के दे दें, आपके पास कंप्लीट नोट हो, कंप्लीट सेक्शन हो याद करने के लिए। दीज आर स्मॉल सेक्स, मतलब छोटे छोटे सेक्स होते हैं, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन एरिया टू द साइटोसोल टू अनदर,
और टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टीमेटली आउट ऑफ द सेल। मतलब कहने का ये है कि बेसिकली ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ये ऐसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं कि सेल के बाहर की किसी चीज को भेजना हो, तो ये वेसिकल्स काम करते हैं। ये अपने आप में क्या करते हैं, दीज आर द स्मॉल सेल दैट कैन यूज टू ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन एरिया ऑफ द साइटोसोल। साइटोसोल बेसिकली सेल के अंदर मौजूद उन्हीं को मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, टू अनदर, मतलब जो मॉलिक्यूल्स आपको ट्रांसफर करने हैं साइटोस टू अनदर, ठीक है। और इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की चीज को अगर भेजना है तो वो अपने आप में कौन काम करते हैं, वेसिकल्स काम करते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट को यूज किया है बेटा, हर एक सेल ऑर्गेनेल को इंक्लूड किया गया है। वैक्यूल्स पहली बता चुका था मैं, इट इज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ फ्यूजन जॉइनिंग ऑफ सेवरल वेसिकल्स, मतलब दिस इज अ लार्ज वर्जन ऑफ वेसिकल एंड सर्व द सेम फंक्शन व्हिच इज ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लेकिन आप इस तौर पे याद रखिएगा कि जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन, दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस, दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस, और यही एम्प्टी स्पेस बेसिकली इन्हीं एम्प्टी स्पेस से हम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ये वैक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करने के भी काम आते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज आ गई भैया, लाइसोसोम्स ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, राइट। सेल के अंदर अगर कोई अनवांटेड बैक्टीरिया या अनवांटेड पार्टिकल आ जाता है तो लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये उस अनवांटेड पार्टिकल के पास जाते हैं, उसके ऊपर अपने आप को लैंड अप कराते हैं, तो बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे फिदायनी हमला होता है ना, है ना, जो बेसिकली जैकेट पहन के चलते हैं और अपने आप को फोड़ देते हैं, कुछ ऐसा ही काम लाइसोसोम्स का होता है। इसीलिए क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। आत्मघाती थैली के रूप में किसको जाना जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज नोन एज लाइसोसोम। दिस इज द सेल्यूलर ट्रैश कैन, मतलब डाइजेशन, भाई कुछ भी ट्रैश ट्रूश आया लाइसोसोम के पास भेज दो, क्यों, क्योंकि ये उसको डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है। और स्टमक, लाइसोसोम्स आर sac that are similar in appearance to vesicle, but these function to digest waste product from the cell and to remove the digestive waste product from the cell। समझ आया। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा which part of the cell is known as suicidal bag of the cell, so from now you must have only one answer, lysosomes। Because why? Because lysosomes helps in digestion of unwanted particles and also digestion of food particles, but also helps in removing waste material from the cell। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई होगी, we can move further and the last but not the least part, mitochondria, very important। इसमें कुछ फर्दर आपको मैं इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। दो तीन रीजन है बेटा जी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। सबसे पहला रीजन, बिकॉज दे परफॉर्म सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दे परफॉर्म व्हाट, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सर सेल्यूलर रेस्पिरेशन से मतलब क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं ये ऑक्सीजन बेसिकली कहां जा रही है, सेल्यूलर लेवल पे जा रही है। उन सेल्स को जरूरत है ऑक्सीजन की, क्यों जरूरत है ऑक्सीजन की, क्योंकि जो ग्लूकोज बेसिकली जो आपको फर्दर डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज ही मिलता है ना, वो सेल्स के पास अपने आप में मौजूद होता है। वो ग्लूकोज फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो ग्लूकोज फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी में कन्वर्ट होता है, विच इज नोन एज केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा के तौर पे केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल, केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल, इसके फॉर्म में एनर्जी को रिस्टोर करते हैं, समझ आया। तो व्हाई, अभी हम दो तीन पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर ऑफ द सेल। फर्स्ट, इट इज द ओनली सेल ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इसके अलावा कोई और सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं करता, क्योंकि इन्हीं को ऑक्सीजन की जरूरत है, बिकॉज इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज करके एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। एटीपी इज द केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल। एटीपी की फॉर्म में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, mitochondria is also known as powerhouse of the cell because of also this reason, because they possess their own DNA, they possess
their own DNA/RNA. वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए सीडीएस एफकैट में मल्टीपल टाइम्स इस चीज को पूछा गया है, ये पूछा गया है अदर देन न्यूक्लियस विच सेल ऑर्गेनल्स पोजेस डीएनए, न्यूक्लियस के अलावा या नाभिकीय के अलावा कौन सा ऐसा कोशिकीय, जिसको आप सेल्यूलर कहते हैं, कोशिकीय अंग होता है या सेल्यूलर ऑर्गेनल होता है जिसके पास डीएनए उपस्थित होता है, विच पोजेस डीएनए इनसाइड इट। तो आप हमेशा एक चीज आंसर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के अलावा अगर किसी पे डीएनए उपस्थित होता है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। पावर प्लांट ऑफ द सेल, दिस प्रोड्यूस एटीपी ऑफ द सेल टू यूज। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवा दिए हैं तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक, क्योंकि इस कंटेंट में इतना सारा हमारे पे मौजूद नहीं है, लेकिन मैं सारी पार्ट्स आपको अच्छे से बताना चाहता हूं, इंटरमीडिएट कंटेंट अच्छे से बताना चाहता हूं। बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो हमने पढ़ लिया, इट इज द ओनली सेल ऑर्गेनल व्हिच परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज in the presence of oxygen, converts them into some kind of a chemical energy that is known as ATP. ATP full form अगर आपसे कोई पूछे adenosine triphosphate, that is the full form of ATP. Second, other than nucleus, it is the only cell organelle that possess DNA/RNA. इनका अपना DNA होता है। न्यूक्लियस के अलावा मुझे और किसी पे DNA चेक करना हो तो किस पे करूंगा? इसी पे करूंगा। आ जाइए, क्लोरोप्लास्ट। सर ये निकल कर कहां से आया है? एक सेल ऑर्गेनल होता है जो आप पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स। ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये सेल ऑर्गेनल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, वहां पे भी लिखा हुआ है ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इसका पार्ट होता है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स तीन प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिएगा, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। सर थोड़ा सा इनके बारे में लाइट डाल दीजिए, मैं बिल्कुल डालता हूं। क्रोमोप्लास्ट जो प्लांट्स में आप देखते होंगे, प्लांट्स जनरली एक कलर के नहीं होते, ग्रीन, मोस्टली ग्रीन होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, जो क्लोरोफिल उनमें मौजूद होता है उसके कारण से ग्रीन होते हैं। बट इनमें केवल ग्रीन पिगमेंट ही नहीं, और भी कलर्स के पिगमेंट मौजूद होते हैं। वो बेसिकली कौन कंट्रोल करता है? क्रोमोप्लास्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर कलर्स इन प्लांट, रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर कलर्स इन प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट टू स्टोर फूड इन प्लांट्स, टू स्टोर फूड मटेरियल, टू स्टोर व्हाट? फूड मटेरियल इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसको आप बोलते हो क्लोरोफिल। क्या ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है? ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसको आप कहते हो क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या काम करता है? आपको आगे से बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल बेसिकली हेल्प्स इन एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी, दैट लाइट एनर्जी फर्दर यूटिलाइज इन मेकिंग ऑफ फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। अगर मैं, भाई चलो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल कौन कौन सी यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और HNO लाइट मौजूद होती है तो क्या बनाता है? C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, राइट। दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। बेटा जी आ जाइए, अभी आपने समझ लिया क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स is the cell organelle that you will only find in plant cell. प्लास्टिड्स अपने आप में एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लास्टिड फर्दर डिवाइड्स अप इनटू थ्री पार्ट्स, कहीं नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। These are the mitochondria of plant cell. Yes, you can say that, मतलब पावर हाउस खाना बना रहा है। Plants cell do have mitochondria, but these are play bigger role in producing energy than the mitochondria. Yes, क्योंकि उनमें एनर्जी बेसिकली यही ग्लूकोज तो यही लाके दे रहा है। क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, जैसे हमने बात करी फोटोसिंथेसिस की फ्रॉम सन रेज, सारी बात कर ली, सारी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि हम इंटरलेटेबल कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और बात करने का इंपॉर्टेंटली जानते हैं, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि
सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब ये नीचे पढ़ोगे आप, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में मौजूद होती है। अब हमें लाइक थोड़ा सा क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है या आउटर सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दिस इज द आउटर शेल ऑफ द सेल। इन यूकैरियोटिक वी हैव अ फॉस्फोलिपिड, क्योंकि किसकी बनी है, मैंने आपको बताया था फैट्स एंड लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, इसको याद रखिएगा। फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है, which is extremely important to know, and this bilayer functions to have selectively permeable membrane। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने नोट कर लिया तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। क्यों मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलता हूं, बिकॉज इट अलाउज और डू नॉट अलाउ सम पार्टिकल टू एंटर द सेल। तो इसीलिए, क्योंकि इसका कैसा होता है, इसका जो अगर सेल बनाऊं मैं, ये सेल वॉल है, इसके अंदर सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोरस मेम्ब्रेन के तौर पे भी जानी जाती है। कैसे जानी जाती है, पोरस मेम्ब्रेन, छिद्र, छेद छेद मौजूद होते हैं, है ना। तो जो भी चीज आ रही है इनके थ्रू आती है, किसी चीज को ये मना कर देते हैं कि नहीं ये अंदर आ सकते, तो इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे भी जाना जाता है, जो फॉस्फो और लिपिड से मिलकर बनी है, लिपिड्स और फैट से मिलकर बनी है, और जो अपने आप में सेल को एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का भी काम करती है। जैसे कि इन ह्यूमन बीइंग्स और इन ऑल द अदर एनिमल्स या मैमल्स में जो जनरली होता है सेल वॉल मौजूद होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन के तौर पे जाना जाता है। याद रखिएगा फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। Last but not the least, cell wall made up of cellulose, only present in plants. In plants, this is a tough but flexible extra wall around the plasma membrane. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। Its main function to act pressure vessel to prevent the cell from expanding too much as water enters in it. Yes, एक तो प्रोटेक्शन का काम करती है, और प्लांट सेल को, क्योंकि प्लांट सेल थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं, ताकि वो ज्यादा एक्सपेंड ना हो, तो ज्यादा एक्सपेंशन उसका ना हो, तो उसमें भी प्रिवेंशन का काम करती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को आई होप आप लोगों को पूरा सेल बायोलॉजी, क्योंकि अभी हमने एक टॉपिक ऑफ सेल बायोलॉजी कंप्लीट अच्छी तरीके से किया है। आई विश आप लोगों को कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स एंड व्हाई सेल बायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट ये सब समझ आया होगा, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट में लास्ट में दोबारा से रिव्यू कराते हुए चल रहा हूं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेल बायोलॉजी टू स्टडी अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, व्हाई दे आर डिफरेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, राइट। Difference between like we have 5 number classification, why they are classified differently, ये भी important है। ये तब आप समझ पाएंगे when you will study about the cell organelles, each and every cell organelles very important, right। तो हमने काफी सारे cell organelles के बारे में बात किया। I wish आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया हो। अगर if there will be any doubt, I am right here only, you can ask any time to me, or you can put, and इसके बाद हम कुछ questions के ऊपर भी बात करेंगे and diversity linked organism के ऊपर भी बात करेंगे। That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.